हाँ, अब ये सेकेंड वीडियो में हम क्या देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 3.5 फिफ्थ टॉपिक है, सब टॉपिक है इस चैप्टर का। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे हमको डेरिवेशन करने हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय वी डी। वी लिख के सबस्क्रिप्ट में डी लिखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अभी इसको और एक बार समझ लेते हैं डायग्राम के साथ। ये डायग्राम में देखो, एक वायर बता दिया है, इस वायर को कनेक्ट किया है पोटेंशियल के साथ, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल। मीन्स इस एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट किया है, इस एंड को नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट किया है। अब ये वायर है, कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर को में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड दिस कॉपर वायर all the electrons are moving randomly. As all the electrons are moving randomly, as soon as we connect a potential, positive potential and negative potential to this wire, what we are doing is we will see that electric field is set up. What we will see? कि electric field is set up from where to where? From positive potential to negative potential. इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डायरेक्शन में सेट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सेट हो गया, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस एंड, व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स which are present at this end, they will be repelled by the negative terminal. So the electrons which are present here, they will start move towards this positive terminal. Why they will start moving towards the positive terminal? Because earlier they were moving randomly. There was no potential, and when there was no potential, there was a random motion of the electrons. But now because the potential has been given, positive terminal and negative terminal is given to two sides. Now the electrons will start move towards the positive terminal. So what the electron will do? The electron will move against the electric field. Electron किस तरह से move होगा, against the electric field में होगा. So from this what we conclude? We conclude that whenever there is an electric potential is applied between the two ends of the terminal, electric field is set up. And when the electric field is set up, what this electric field will do? It will accelerate the free electrons. What it will do? It will accelerate the free electron present in the conductor. Then what will happen? This free electron will be drifted from negative terminal towards the positive terminal. अब क्या हो गया, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने के कारण क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। एंड व्हाट इज दैट फोर्स, कल ही हमने देखा था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू कैपिटल ई। सो व्हाट इज हैपनिंग with that force? The electric field will accelerate free electrons from where to where? From negative terminal to positive terminal. Means electric field is set up in one direction and the electrons are drifted in opposite direction of the electric field. So this acceleration is called as the velocity, or this drift with which the electrons are drifted from negative terminal towards the positive terminal is called as the drift velocity. So what is drift velocity? The drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons are drifted in a conductor in a direction opposite to the direction of applied electric field. तो drift velocity के लिए हमें एक सबसे important चीज़ याद रखना है कि this is an average velocity with which free electrons are getting drifted in a conductor in a direction opposite to the direction of the applied electric field. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया जाता है, एंड दैट वेलोसिटी with which the free electrons are getting drifted
opposite to the direction of electric field is called as the drift velocity. तो drift velocity is denoted by vd. v लिख के सबस्क्रिप्ट में d लिखना है, vd लिखना है इसको. सो इसको इस तरह से लिखते हैं. तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विच इज ड्रिफ्टिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर in a direction opposite to the direction of applied electric field. So जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड, एंड दिस ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. समझ में आ गया? तो जब भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के अगेंस्ट में, उसके दोनों टर्मिनल्स में जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वन एंड को पॉजिटिव देते हैं, दूसरे एंड को नेगेटिव देते हैं, तब क्या होता है? ये पोटेंशियल क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है. किसके अंदर? वायर के अंदर. और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया वायर के अंदर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करता है, मगर किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं. और दिस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. It is given by Vd, and this drift velocity will be experiencing a force. That force is called as force. It is given by F is equal to minus of E. फर्स्ट दिन से हम देखते आ रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स गिरता है. F is equal to minus of E into E. और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स गिरेगा तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूव होना शुरू हो जाएगा. मूव नहीं होगा, उसको कहेंगे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है. इसके लिए हम इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. समझ में आ गया? सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये एक तरह का एवरेज वेलोसिटी है विथ विच free electrons are drifted in a conductor in a direction opposite to the direction of electric field. तो इस तरह से अपना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ. ये जस्ट डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग खत्म हुआ है. अभी जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तब हमें मालूम होना चाहिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या समझना है? रिलैक्सेशन टाइम. Now what is relaxation time means? It is the small interval of time between two successive collisions between the electrons and the ions in the conductor. This is called as the relaxation time, or it is also called as mean free time. So अभी इसका समझने के लिए और एक बार अच्छी तरह से समझना है कि कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए कंडक्टर. जैसे ही हमने पोटेंशियल दिया कंडक्टर को या वायर को, तब क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या होगा? एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होता है. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So when all the electrons have started drifting opposite to the direction of electric field, then what will happen? They will collide with each other, they will collide with the ions, and they will collide with the atoms. So the average time interval between the two successive collision, मतलब दो collision के बीच का जो टाइम है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. इसका मतलब क्या है? इस टाइम के वक्त इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं होते हैं. इस टाइम के वक्त क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं होते हैं.
बाकी सब टाइम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोलिजन होते हैं। सो इस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम in a conductor during which there will be no collision, or it is the time interval between the two successive collision। क्लियर हो गया। सो ये जो कोल्यूशन है, रिलैक्सेशन टाइम है, डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तब। इसका मतलब क्या है, अगर हमने कंडक्टर को हाइयर टेम्परेचर पे लेके गए तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। अब रिलैक्सेशन टाइम जो है कंडक्टर ये इलेक्ट्रॉन का, वो कितना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, 10⁻⁻14 सेकेंड है। मतलब इतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी के आयन के साथ या एटम के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड नहीं होता है। इतने टाइम के लिए ही 10⁻⁻14 सेकेंड के लिए टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन किसी से कोलाइड नहीं होता है। सो दिस टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है ऑर्डर, सेकेंड पॉइंट और एक चीज हमने नहीं देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। सो द एवरेज इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी कितना है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर वो कितने स्पीड से मूव हो रहे हैं, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से। और पोटेंशियल अप्लाइड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं वो किस स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड से ड्रिफ्ट हो रहा है। समझ में आ गया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या करता है, एकदम माइन्यूट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर कितना है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, 10⁻⁻4 सेकेंड है। सिमिलरली अभी हमने रिलैक्सेशन टाइम देख लिया था, रिलैक्सेशन टाइम कितना है, 10⁻⁻14 सेकेंड से। क्लियर हो रहा है। तो ये हुआ अपना रिलैक्सेशन टाइम, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑल्सो द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया। सो ये है रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टो कहते हैं। तो टो का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻14 सेकेंड। टो इज इक्वल टू, टो का ऑर्डर कितना है, 10⁻⁻14 सेकेंड। मतलब इतने सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं होगा। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में 10⁻⁻14 सेकेंड्स का वक्त फ्री मिलता है इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आज का मोबिलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब म्यू इज इक्वल टू वी बाय ई। वी क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। So mobility mu is equal to what? Drift velocity by electric field. तो mu is equal to Vd by E. What is Vd? अभी हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको डेरिवेशन करना है, तो वो डेरिवेशन हम कल करेंगे। आज मैंने सिर्फ तुम लोगों को डेफिनेशन पार्ट ख़त्म किया है। मोबिलिटी के बारे में बताया है, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया है। ओके, सो डिफिनेशन पार्ट हमने आज ख़त्म कर लिया है। कल से हम डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे एज पर एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारा जो हम देख रहे हैं 2-3-4 दिन से, ये सारा का सारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको तुम स्किप नहीं करना है। अगर ये आप लोग अच्छी तरह से परफेक्ट करोगे
तब बाकी का आगे का तुमको समझ में आएगा। तो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी इज गिवन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज़ द एवरेज टाइम और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन कंडक्टर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी मैं इसको नोट्स भेज रहा हूँ, ये नोट्स से आज इतना पूरा लिख लेने का है। ओके, अभी नोट्स जो है वो वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ओके, तो भी आज के दिन मैं दोनों इसमें क्लिक करता हूँ। कल से मैं क्या करूँगा, वीडियो के साथ ही नोट्स को अटैच करूँगा, तो बार बार दोनों एक ही साथ में दोनों तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।